کہتے ہیں کہ خواجہ آصف جیل میں ہے، تو کیا یہ ایوان خواجہ آصف کی رہائی کے لیے ہے؟ انہوں نے دوسرا بندہ اٹھا، قبضہ مافیا کے حوالے سے بات کی. یہ 36 لوگوں کی لسٹ ہے کہ جس طرح لیڈر ان کا چور تھا، اسی طرح ان کے نیچے لوگ جو تھے انہوں نے ملک کو لوٹا، ملک کے اوپر قبضہ کیا، ملک کے اساسوں کے اوپر قبضہ کیا. اور اسپیکر صاحب، انہوں نے ویسے کمال ہے، سعید صاحب بات کیجئے، اپنی بات مکمل کریں جی. لیڈرشپ کا حکم آتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اسپیکر صاحب آپ ہاؤس این آرڈر کریں تاکہ میں بات کر سکوں. اسپیکر صاحب اگر ہاؤس این آرڈر کریں میں جلدی جواب دے دوں گا، 5 منٹ میں ختم کر دوں گا. تمام ممبر سے میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو سنیں. اگر اسی طرح کا ماحول رہا تو پھر میں اس طرح تو چلانا مشکل ہے جی. اسپیکر صاحب میں تو بات کر لوں گا، میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہی نہیں سن رہا اس وقت. وہ شور مچا کے کہہ رہے کہ عوام تک آواز نہیں جائے گی. عوام تک تو میں آواز پہنچاؤں گا. 6 سوال اٹھائے تھے. پہلا سوال پی آئی اے اور سٹیل مل کا. سٹیل مل پی آئی اے، یہ حالت آپ نے کر دی کہ آپ کے وزیر نے کہا کہ اگر کوئی پی آئی اے خریدے گا تو سٹیل مل ان کو مفت میں دیا جائے گا. نمبر 2، وطن سے اتنی محبت ہے تو لیڈر تو خود اس وقت لندن بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، وہ پاکستان آ جائے، وہ پاکستان بات کرے. تیسرا، اکانومی کے حوالے سے سوال کیا. اسپیکر صاحب بولے، کرے شور کرے. میں تو کر لوں گا، میں تو شور میں کر لوں گا. شاہ صاحب انہوں نے سوال اٹھائے، سنیں گے نہیں. نہیں، یہ ایوان چلانے نہیں چاہتے، بات کریں گے پھر اس کے بعد. یہ اسپیکر صاحب میں ذرا جواب بعد میں دے دوں گا جب خاموش ہو جائیں گے. میں اپنی بات کر لیتا ہوں. ایک یہ کہ براڈ شیٹ کا بڑا شور سنا تھا ہم نے. براڈ شیٹ میں بھی کیا ثابت ہوا کہ ان کے لیڈر نے جس طرح پاناما میں باقی چیزوں کی طرح ملک کو لوٹا تھا، مزید ان کے کیسز سامنے آ گئے. پارٹی کا اپنا رسیدیں اس لیے نہیں جمع کر رہے کہ منی لانڈرنگ کے لیے، چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، کرپشن کے لیے، ککس بیکس کے لیے انہوں نے پارٹی اکاؤنٹس کو بھی استعمال کیا. پارٹی اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے انہوں نے استعمال کیا. پھر تیسری چیز، اسپیکر صاحب انہوں نے کسان کی بات کی. کسان کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ایگریکلچر ان کے دو گروتھ میں چلا گیا تھا. اسپیکر صاحب پاکستان کے بچائے شور. ویسے غلاموں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، سارے غلاموں کو اشارہ ہوتا ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو غلامی سے آزادی دلانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس غلامی سے آزادی دلانا چاہتا ہوں. آپ نے غلامی کی زنجیریں پہنی ہیں تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مراد. چیئرمین صاحب ایک اور، یہ جو آئینی ترمیم ہے، آئینی ترمیم میں کیا کہا گیا ہے؟ ابھی تو بحث شروع نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکات اٹھائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بتائے اس قانون سازی پہ آئے. مراد سعید صاحب ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کے یہ سینٹ میں
पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और सेनेट को ये पैसे पे एमपीएस भेड़ बकरियों की तरह खरीदते हैं। ये सिलसिला बंद हो, ये गलत काम है। यहाँ पे अच्छे एमपीएस जो यहाँ पे मेरिट पे बात करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, उनकी भी आप तौहीन करते हैं, क्योंकि हर सेनेट इलेक्शन के बाद ये बात की जाती है कि एमपीएस बिके, फ्ला बिका, सेनेट में कोई बिका। चेयरमैन साहब, इस सिलसिले को बंद करना चाहिए, इसीलिए क्या कानून साजी है। और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे ओपन बैलेट हो, सबके सामने वोट दिया जाए कि जो चांगा मांगा की सियासत है उसको दफन किया जाए। ये क्यों सपोर्ट नहीं करते? इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि जिस तरह इनके लीडर ने लूटा, जिस तरह इन्होंने खुद लूटा, उसी तरह ये कब्जा माफिया है, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा और ये इन्हीं पैसे को इस्तेमाल करते हैं सेनेट के लिए। मुखालिफत की कोई दलील दे दे, कोई वजह दे दे, कोई वजह दे दे, उसके ऊपर बात करे, सवाल उठाए, हम जवाब दे, लेकिन नहीं करनी बात। चेयरमैन साहब, एक और चीज सुन ले, ये जो अभी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और वो बंदे लगे हुए हैं जिन्होंने कहा था कि इस्तीफा मुंह पे मार देंगे, इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी के बाद हुकूमत चली जाएगी, आज यहाँ पे आके असम्बली में बैठ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की, इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की, क्योंकि ये सियासत करते हैं लूट मार के लिए। असम्बली आते हैं लूट मार के तहफ्फुज़ के लिए, उसके बचाने के लिए। स्पीकर साहब, नवाज को क्या लंदन बैठा हुआ है, एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। पेट खराब है, सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं, बुलाया जा रहा है। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे फेस करो। वह बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बाहर बैठ के दुश्मन के बयानियों को फरोग किया जा रहा है। अभी हसन इकबाल अपने करप्शन को बचाने के लिए चीन का नाम इस्तेमाल कर रहा था। चीन पाकिस्तान का दोस्त है, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगर आप दुश्मनों की बात करते हैं तो जवाब दे कि क्यों सजन जंदाल से बगैर वीजा बुला के उनको आप मुलाकातें करते थे, किस तरह आपके खानदानी ताल्लुकात थे। अगर आपने पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ों की मुखालिफत करनी है तो बरकत ने किताब में लिखा कि मोदी से आपने चुप के मुलाकातें की, आप उसका जवाब दे। मोदी को आपने घर बुलाया, उसका जवाब दे। भारत जाके हुर्रियत रहनुमाओं की बजाय आप बिजनेसमैनों से मिले, उसका जवाब दे। आप इन चीज़ों का जवाब दे कि आपके स्टेट से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा क्यों लगा, आप इस बात का जवाब दे। बल्कि शर्म ही नहीं है आप में। आप इसका जवाब दे कि पंजाब में लाहौरियों के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उसका जवाब दे। आप इसका जवाब दे कि क्वेटा जाके आपने पाक अफगान बाढ़ जो अमन का बाढ़ है उसको उखाड़ फेंकने की बात की, उसका जवाब दे। आप खैबर पख्तूनख्वा जाके लड़ और बर का नारा लगा के उसका जवाब दे। आप जवाब दे, इन चीज़ों का जवाब नहीं देंगे। स्पीकर साहब जवाब नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पे शोर मचाएंगे। और जो एहतिजाज कर रहे हैं, जरा कौम देख ले ये मंजर कि 20-20 मिनट तकरीरें झाड़ के इन्होंने 20-20 मिनट की तकरीर झाड़ के इन्होंने यहाँ पे अपने जिसको गुलाम समझते हैं उनको खड़ा किया कि शोर मचाना शुरू कर दे, ताकि इनके सवालात का जवाब ना पहुंचे, ताकि इस ऐवान को ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, कब्जा माफिया के तहफ्फुज़ के लिए, पानामा ब्रॉडशीट और इसमें आए चोरी को बचाने के लिए जो ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के हक में आ रही है, इसको बचाने के लिए इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। चेयरमैन साहब, ये हाउस उसके लिए नहीं है, ये हाउस अवामी मफादात की तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये हाउस पाकिस्तानी कौम के इशूज़ की डिस्कशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये ऐवान पाकिस्तान के अवाम के हर मसले के हल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आप आ जाते हो, ऐवान को इस्तेमाल करते हो अपनी ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती मफादात के तहफ्फुज़ के लिए।
इससे नहीं होगा स्पीकर साहब, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह ये हाउस नहीं चलेगा स्पीकर साहब। इनकी मर्जी के मुताबिक हाउस नहीं चल सकता, इनके चोरी के बचाने के लिए हाउस नहीं चल सकता, कब्जा माफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाउस नहीं चल सकता। हाउस चलेगा तो मुल्क और कौम के लिए चलेगा, हाउस चलेगा तो आईनी तरामीम और आइन के मुताबिक कानून साजी के लिए चलेगा, हाउस चलेगा तो कौम के इशूज के लिए चलेगा। कौमी असम्बली के इजलास में मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि लीडरशिप का हुक्म आए तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। 6 सवाल उठाए PIA और स्टील मिल के हवाले से। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वतन से इतनी मोहब्बत है तो लीडर मुल्क के बाहर क्यों है, वापस क्यों नहीं आते। जी मुराद सईद साहब अपनी तकरीर ख़त्म करें, इख्तिताम पे लेकर जाएं अपनी बात। मुराद सईद साहब। चेयरमैन साहब, नहीं चेयरमैन साहब, अगर इस तरह कोई मुआहिदा होता है कि स्पीचेस करेंगे फिर उसके बाद मुकमुका होगा, मुकमुका नहीं चलेगा। कम अज कम मैं मुकमुका के लिए यहाँ पे नहीं आया स्पीकर साहब, मैं किसी मुकमुका का हिस्सा नहीं बनूंगा। इन्होंने बात की है, बात सुने। ये नहीं हो सकता कि स्पीकर के पास चले जाएंगे, शाह साहब के पास चले जाएंगे, आपस में बैठ जाएंगे। इसके लिए ये हाउस नहीं बना, हाउस बना है अवाम के इश्यूज के ऊपर बहस करने के लिए। ये शोर मचाना चाहते मचाए, 3 दिन तक मचाए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है करें, मैं किसी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। 15 मिनट की स्पीच करके ये शोर मचाना शुरू कर देंगे, हम भूल जाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास में मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि चोरी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पार्टी अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि गुलामी की जंजीरें पहनी हुई हैं सबने, हम चाहते हैं ओपन बैलेट हो। इस्तीफा अब तक नहीं दिया, जो इस्तीफे देने की बात करते थे वो आज यहाँ बैठे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं। बताते चलें कि कौमी असम्बली के इजलास में मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि लीडरशिप का हुक्म आए तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। 6 सवाल उठाए।